Can you all see the page? Can you all see the page on your screen? Chapter 4. Yes. Okay. I think I'd already given you the introduction of this chapter, that how the traders became ruler, how the Britishers, they entered in India for trading, then they fought battles with French, Portuguese, Dutch people. They drove away all these foreigners outside India, and they were the only traders trading in India. Slowly and gradually, the traders started doing agreements, doing treaties with the kings for less tax, for no tax, for cheaper taxes, etc. And then they started interfering in the politics of our country. मतलब जो भी किंग्स थे उनके किंगडम में वो इंटरफियर करना शुरू कर दिया, एंड देन फाइनली दे रिमूव्ड द किंग एंड started ruling themselves. This is how the traders became the rulers. Okay, and we studied the map also last time. Map में हमने देखा था that only the portion which is in white was ruled by the Indian kings, and other pink, purple, green, yellow, all these kingdoms were taken over by the Britishers year after year. Okay, so any doubts in the map, anybody? Okay, let's start the reading part. Actually, reading portion we had started with the first paragraph, but आज वापस फर्स्ट लाइन करेंगे. ठीक है, फर्स्ट लाइन से ही करेंगे क्योंकि बहुत हमारा वैसे भी हुआ नहीं था. राइट नाउ सेकंड थिंग, we also talked about that story of monkey and cats, and I think you are now very well familiar with that story. कैसे मंकी ने चीटिंग करके दोनों कैट्स को फाइट करवाया और पूरी रोटी खा गया. तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स भी मंकी की तरह इंडियन किंग्स को फाइट करवाते थे और पूरा पावर जो है, कंट्रोल जो है वो खा गए. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग पार्ट. The children were engrossed in reading the story of two cats and monkey during the recess. I think you have written the meaning of engrossed. Involved. Very good. On reading the story, Jai and Mitali. Now, Jai and Mitali, these are the two students. They were making fun of each other. Their class teacher, who was sitting beside them, said, "Children, this too is a policy. आप लोग सिर्फ कहानी सुन के खुश हो रहे. You are making fun of this story of cats and cats and monkey, but actually it is a lesson to be learned, right? कि जब भी आपकी किसी के साथ फाइट होती है तो हमेशा दूसरा इंसान आकर बेनिफिट लेता ही है, ऑलवेज. राइट, सो टीचर गिव्स देम अ सजेशन दैट ये भी एक पॉलिसी है. The third party takes advantage of a quarrel between the two. Whenever two people are fighting, the third person always takes a benefit. Third party, party मतलब हैप्पी बर्थडे वाली पार्टी नहीं. Third party means third person. The British had expanded their empire in India with such a policy. Jai asked, "Sir, how is that possible?" The class teacher replied, "Let us go to the class, and there I will explain about how the British came to India and established their rule over the Indians." So Jai was a student. Okay, so Jai could not understand कि रोटी वाली story जो है, चपाती वाली story, how can it connect with our country? How can it be associated? So the sir said that chalo, let's go in the class and I will tell you the whole story of Britishers, that how the traders became rulers. Okay, so now from next paragraph the teacher starts explaining the students जैसे मैं आपको करने वाली हूँ. Okay, so now let us solve this problem कि ये कैट एंड मंकी वाली स्टोरी यहाँ पर कैसे फिट होती है. Okay, by the middle of the 18th century, but I don't want anybody to speak without raising the hands. मुझे डिस्टर्ब होता है, मेरा लिंक ब्रेक होता है. If you speak anything, to ask anything, raise your hand and don't start speaking. वो मैं बोल रही हूँ बैकग्राउंड में, आप शुरू कर देते हो. Very disturbing. मुझे पता है आप बहुत एक्साइटेड हो, आपको बहुत मजा आ रहा है इसमें, लेकिन there are other students also in the class. Don't disturb them. Okay?
यू आर फ्री टू स्पीक एनीथिंग, आप अपने आइडियाज, आपके फीलिंग्स जो है यू कैन शेयर इन द क्लास। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि मैं ही बोलूंगी और आप ही सुनोगे, बट इफ यू वांट टू स्पीक प्लीज रेज योर हैंड। पहले ऑनलाइन है पर क्लासरूम तो है, डिसिप्लिन तो चाहिए। एम आई वेरी क्लियर? चलो। By the mid of the 18th century, the British had started to emerge as a strong power on the Indian political horizon. Horizon means the field. India की जो political field थी, British had started emerging to be a very strong power. Okay, so underline नहीं, write the next word horizon meaning field. Field मतलब वो खेतीबाड़ी वाली field नहीं, but in the political field of India. Do you know that the British came to India only for trade? Initially, they took permission to trade in Indian states. Initially means in the starting. Okay. Then, how did they become the rulers of entire India? The history of the British rule arouses many such questions. कि आए थे तो ट्रेडर्स बन के, फिर रूलर्स कैसे बन गए, 200 years तक रूल कैसे किया, फिर वापस कैसे गए? There are so many questions और सभी questions के answers it is in this 8th standard book itself. To serve their economic interests, they increased their political hold on India with the use of British diplomatic techniques. Right? अब diplomatic technique मतलब क्या कि पहले वो friend बनते थे, फिर friend बन के king के साथ relations increase करते थे. As soon as they were very friendly with the kings, as soon as they start knowing the secrets of the king's policy, they attacked on the king and took the power. Okay, तो डिप्लोमेटिक टेक्टिक्स ये पूरा एक साथ अंडरलाइन करो, लिखो. दिस विल बी अ थर्ड मीनिंग. डिप्लोमेटिक टेक्टिक्स मीनिंग फ्रेंडली एक्शंस. फ्रेंडली एक्शंस. ओके, राइट द मीनिंग. ऐसे आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, है ना? वो स्पेशली वो सास बहू वाली सीरियल में तो बहुत होता है कि फ्रेंड 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 करके घुस जाते हैं और फिर चोरी करके भाग जाते हैं. Have you seen this? I think many times. Right? So Britishers did the same thing. First they came as traders, then they started agreements and treaties and dealings with the kings. और kings को क्या लगता था कि हमको तो इससे बेनिफिट मिलता है, हमारा तो इसमें फायदा है. लेकिन धीरे धीरे जो फायदा है that starts turning towards the Britishers, and this is how the traders became rulers. Okay. Now how did this happen that we are going to learn? Have you written the meaning, all of you? Shall I erase this? क्योंकि स्क्रीन को जूम करना पड़ेगा. ठीक है? Can you see the full page? Okay. Now Wellesley's policy of expansion. Wellesley means Lord Wellesley, who came to India as a Governor General. ठीक है? अब क्या होता था कि पहले तो ब्रिटिशर्स केम एज द ट्रेडर्स, राइट? उन्होंने यहाँ पर एक कंपनी स्टार्ट की थी, अगर आपको पता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी, पता है ना? ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर फैक्ट्रीज बनाती थी, ट्रेड करती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती थी और इंडियन किंग्स को टैक्स पे करती थी. देन स्लोली एंड ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एंटरिंग द पॉलिटिक्स. अभी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करते थे दैट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इनका एक हेड जो है वो इंग्लैंड से भेजते थे इंडिया में, और वो इंडिया में क्या करेगा, वो लीडर वो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करेगा और इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, इसका जो भी पॉलिसी मैटर्स है, जो भी रूल्स है, वो इंफॉर्मेशन रेगुलरली इंग्लैंड में पहुंचाएंगे. ठीक है, ये काम था ईस्ट इंडिया कंपनी का. तो ये जो लीडर होते हैं, जो हेड होते हैं, जो रेगुलरली वो लोग भेजते हैं, उसको बोलते हैं गवर्नर जनरल. क्या बोलते हैं? गवर्नर जनरल. ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली वॉज वन टाइप ऑफ गवर्नर जनरल हु वाज सेंट टू इंडिया फॉर
लीडिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली ने ऐसी पॉलिसीज बनाई, लॉर्ड वेलेस्ली ने ऐसे एग्रीमेंट्स किए इंडियन किंग्स के साथ कि वो वेरी इजीली पॉलिटिक्स में एंटर हो गया। नाउ व्हाट वाज दिस पॉलिसी? आई थिंक यू नो व्हाट इज एक्सपांशन। ठीक है, जो ऊपर हमने मैप में देखा वो क्या था? ब्रिटिश रूल इज एक्सपेंडिंग। Okay, British rule is expanding. So Lord Wellesley played a very important role in expanding the British rule in India. What did he do? Do the reading part. When Wellesley came to India as a Governor General, cutthroat competition existed between England and France. Cutthroat competition. मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, तुम मेरा गला दबा दो, जो पावरफुल है वो यहाँ पर टिकेगा। हमें तो पता ही है that England मतलब Britishers they fought with French, Portuguese, Dutch, all the people, right? So when Wellesley came to India, there was a tough competition between England and France. दोनों को यहाँ पर टिकना था, दूसरे वाले को भगाना था। It was necessary to check France from becoming powerful in India so as to expand the British rule in India. Wellesley introduced a new plan which was known as the subsidiary alliance. अब फ्रांस को भी इंडिया में रहना था, ब्रिटिशर्स को भी रहना था। इट वॉज अ कॉम्पिटिशन अमोंग दोज टू, राइट? तो उसके लिए वेलेस्ली ने क्या किया? ही स्टार्टेड अ पॉलिसी। उन्होंने एक प्लान बनाया जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। ओके, ना अब ये वर्ड आपको खास याद रखना है, सब्सिडियरी अलायंस। दिस इज द पॉलिसी थ्रू विच वेलेस्ली ने बहुत सारे इंडियन किंग्स की साइन ले ली, एग्रीमेंट बनाया, उनकी साइन ले ली और धीरे धीरे किंग्स को अपने अंडर में ले लिया। और जैसे ही इतने सारे किंग्स ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए तो फ्रेंच को ऑटोमेटिकली भागना पड़ा। ओके, नाउ व्हाट वाज दिस सब्सिडियरी अलायंस? Let us read that first and that then I will explain you. Okay. Now, as per the scheme, any princely state means the kingdom. Okay. And I write this word princely state and write the meaning kingdom. Kingdom तो पता है ना आपको? राज्य। Yes or no? ओके, और उसी में एक और वर्ड है अलायंस, सेम लाइन, अलायंस मीनिंग रिलेशन। राइट द सेकेंड वर्ड ऑल्सो। Princely state meaning kingdom, alliance meaning relation. Have you written both the meanings? Okay. So, as per the scheme, any princely state that accepted the alliance had to keep and maintain the British army as well as keep a British representative in the royal court. This way, the British could maintain that army without spending any money. However, the princely states were not allowed to utilize the army. Utilize means to use. Write the next meaning. Utilize meaning use. However, the princely states were not allowed to utilize the army at their own will. ये पूरा मैं explain करूंगी, don't worry. This system, which made them feel secure in the beginning, made them feel enslaved and threatened. Enslaved meanings slave banana. Now, do you know what is slave? Slave meaning what? गुलाम, yes. Slave meaning गुलाम. Okay. तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स वर the Indian kings were enslaved. वो धीरे धीरे गुलाम बन गए and they were threatened. They were afraid. Subsidiary alliance acted like a slow poison for the princely states of India. Now मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या हुआ, that the East India Company was on one part and the Indian kings were on the other part. ठीक है, now just imagine हमारे
ये है ब्रिटिशर्स ऑन वन साइड, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ये प्रिंसली स्टेट्स है कितने, ए बी सी डी ई एफ, ये सभी स्टेट्स है, ठीक है। अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, एक एक किंग के पास जाएगी और उनको एक ऑफर देंगे, एक एग्रीमेंट देंगे। व्हाट वाज दैट एग्रीमेंट, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको किंग्स को प्रॉमिस करेंगे कि आपकी आर्मी जो है उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं है, आपके पास उतने सारे सोल्जर्स नहीं है, तो हम लोग हमारी आर्मी आपके स्टेट को देंगे, ट्रेन्ड क्वालिफाइड वेपन्स और सोल्जर्स इट विल बी गिवन टू द किंग्स, ठीक है। अगर मैं आपको बोलती हूँ, चलो सिर्फ इतना, आगे पीछे का कुछ मत सोचो, मैं आपको बोलती हूँ कि आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है ना, मैं फ्री में आपको एक एक टेक्स्ट बुक दूंगी, आपके घर पहुंचा दूंगी, तो आप हाँ बोलोगे कि ना, ऑब्वियसली, है ना, ऑब्वियसली हाँ। मैडम बुक दे रहे, वो भी फ्री में दे रहे, वो भी घर पे आके दे के जा रहे, तो कौन ना बोलेगा, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी ऐसा ही ऑफर था, हमारे सोल्जर्स, हमारी ट्रेनिंग, हमारे वेपन्स हम आपको देंगे, तो किंग्स विल दे रिफ्यूज, will they refuse? No, they won't refuse. Okay? But then comes the second point. ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि आर्मी तो देंगे, बट इन रिटर्न, फ्री में तो कुछ देंगे नहीं, इन रिटर्न आपको क्या करना होगा, हमारी आर्मी को मेंटेन करना होगा। अब मेंटेन मतलब उनको रहने की जगह देनी होगी, उनको खाना पीना देना होगा, उनको कपड़े वगैरह प्रोवाइड करना होगा और उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, बस, बाकी कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? यस, मतलब ब्रिटिशर्स को क्या बेनिफिट मिला कि उनकी पूरी आर्मी जो है, पूरी आर्मी का पूरा मेंटेनेंस, पूरा एक्सपेंसेस, इट विल बी सफर्ड बाय द इंडियन किंग्स। अब इंडियन किंग्स को क्या लगा कि इतने सारे मॉडर्न वेपन्स, इसके लाखों के नंबर्स में सोल्जर्स हमको मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उनको सैलरी दे देंगे, उनको रहने का खाने पीने का खर्चा दे देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। किंग्स यूज्ड टू बी वेरी रिच एट दैट टाइम, यस और नो? समझ में आ रहा है? ओके। और व्हाट डिड द किंग्स थॉट, किंग्स ने क्या सोचा कि अब आर्मी मेरी मदद कर रही है, आर्मी मेरे लिए काम कर रही है, तो उसका मेंटेनेंस तो मुझे ही करना पड़ेगा, ऑब्वियसली, राइट। सो द किंग सेड ओके, we will maintain your army, we will take care of that army, we want soldiers and weapons। तो ब्रिटिशर्स ने बोला नॉट ओनली दैट, देयर इज वन मोर कंडीशन, जो भी आर्मी वेपन्स हम आपको दे रहे हैं, if you want to use the soldiers, if you want to use our weapons, if you want to use the army, you have to take our permission first, then only we will give you। जैसे अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक फ्री में देती हूँ, तो मैं आपको बोलूंगी कि मैं टेक्स्ट बुक तो दूंगी, लेकिन उसको कवर चढ़ाना, उसमें लेबल लगाना, वो आपको करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे ठीक है, हमें बुक मिल रही तो हम लेबल कवर कर लेंगे। तो मैं क्या बोलती हूँ कि वो तो ठीक है, लेकिन जब भी आपको टेक्स्ट बुक खोलनी है, जब भी आपको उसमें से कुछ लर्न करना है, यू हैव टू टेक माई परमिशन। आ गया ना स्टोरी में ट्विस्ट? समझ में आ रहा है, राइट? इससे क्या होगा, दैट द किंग कैन नॉट फाइट अ बैटल विथ एनी अदर प्रिंसली स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। मतलब पूरे इंडिया में सभी किंग्स एक दूसरे के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे अगर ब्रिटिशर्स ना चाहे तो। अब इससे ब्रिटिशर्स का क्या फायदा होगा कि चलो सपोज अभी किंग ए और किंग बी को फाइट करना है, ओके, तो इसको परमिशन लेना होगा किंग ए को ब्रिटिशर से, और इसको भी परमिशन लेना होगा ब्रिटिशर से। अब ब्रिटिशर्स क्या सोचेंगे कि किंग ए जो है वो बहुत ही पावरफुल है, उसको तो हराना ही पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे कि किंग बी को परमिशन दे देंगे सोल्जर्स यूज करने की, किंग ए को नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिक बी जो है वो ए को डिफीट कर देगा,
और ये पूरा जो एरिया है ए और बी, वो दोनों मिल जाएगा बी को। और फिर ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अपने आर्मी लेकर बी को खुद हरा देंगे। तो ब्रिटिशर्स के लिए ए और बी सब मिल जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा प्लान ऑल ऑफ यू, right? So first we will give you the army, but you have to maintain our army. You have to uh, give the maintenance cost. Second thing, you cannot fight any battle using our soldiers without our permission. Okay? And थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर आप ये सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम साइन करते हो तो मेन इंपॉर्टेंट क्या था कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव, हमारा एक आदमी आपके कोर्ट में रेगुलरली अटेंड करेगा, आपकी जितनी भी सभा है वो। इससे क्या होगा आप बोलो? यस, इंडियन किंग्स का क्या पॉलिसी है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो कुछ रेवेन्यू या टैक्सेस इंक्रीज करने वाले हैं, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, टोल टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल मेथड्स, उनके जो पॉलिटिकल सीक्रेट्स है वो ब्रिटिशर्स तक पहुंच जाएगी। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर द ब्रिटिशर्स टू प्लान देयर नेक्स्ट स्टेप। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? सभी किंग जो भी सपोज ए बी सी डी ई एफ, जितने भी किंग ये सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी साइन करते हैं, हर एक के किंगडम में, हर एक के कोर्ट में, वेन एवर देर इज अ कोर्ट, अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव विल ऑलवेज रिमेन प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, सो स्पेशली इसको क्या बोला गया है? अ स्लो पॉइजन। नाउ व्हाट डज द पॉइजन डू? यस, मार देता है, लेकिन स्लो पॉइजन, धीरे धीरे, जैसे सिगरेट स्मोकिंग है। आप सबको पता है व्हाट इज सिगरेट स्मोकिंग? जैसे ही आप एक सिगरेट स्मोक करते हो आप मर जाते हो? नो, जब आप पहली बार सिगरेट स्मोक करते हो तो आपको मजा आता है, दूसरी बार स्मोक करते हो तो आपको रिलैक्स फील होता है, तीसरी बार अब जब आप स्मोक करते हो तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो, चौथी बार स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, तो आपको बहुत मजा आता है। बट यू डोंट नो दैट अंदर जब वो जाता है आपके लीवर को कितना डैमेज करता है। आप सबको सिगरेट स्मोकिंग के बारे में पता है कि हाउ हार्मफुल इट इज, यस और नो? ओके, फिर धीरे धीरे आपका लीवर डैमेज करेगा, देन स्लोली किडनी को डैमेज करेगा, फिर ब्रीदिंग सिस्टम को करेगा, और धीरे धीरे आपके बॉडी ऑर्गन्स जो है वो लेस एक्टिव होते जाएंगे, एंड विद इन सम इयर्स यू विल डाई। तो डू यू कैन यू से दैट सिगरेट स्मोकिंग इज अ स्लो पॉइजन, right? So this subsidiary alliance was also just like a slow poison for the Indian kings. शुरू शुरू में उनको मजा आता था, शुरू शुरू में उनको बहुत बेनिफिट्स मिल रहे थे, बट अंदर से वो सभी प्रिंसली स्टेट्स के ऑर्गन्स जो है उसको डैमेज कर रहा था। एंड दिस इज द रीजन दैट द ब्रिटिशर्स who came as traders started becoming rulers one by one. Now, is this subsidiary alliance policy very clear to you? इसके बारे में शॉर्ट नोट बहुत बार पूछी जाती है, और यही सब्सिडियरी अलायंस आपका 9th में भी है। सो रिमेंबर इट प्रॉपरली। ओके, शैल वी कंटिन्यू? अभी सब्सिडियरी अलायंस में किसी को डाउट नहीं है ना बेटा? ओके, लेट्स कंटिन्यू। द इंडियन स्टेट्स दैट बिकेम विक्टिम्स ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस, यू नो व्हाट आर द विक्टिम्स? जो शिकार बने इसके, विच स्टेट्स वर द विक्टिम्स? The Indian states that became the victims of the subsidiary alliance were Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, the Gaikwads of Vadodara. Gaikwad matlab the rulers of Vadodara, Peshwas of Pune, and Sindhyas of Gwalior. All these kings, they very readily signed the subsidiary alliance policy.
एनी डाउट्स? ये क्वेश्चन पूछा जाता है देखे, विच स्टेट साइन द पॉलिसी, तो दिस इज द आंसर. एनी डाउट्स एनीबॉडी? यस बोलो बेटा. दैट ऑफिशियली इट वाज नॉट कंपलसरी, किसी किंग को फोर्स नहीं करते थे, बट उनकी जो कंडीशंस थी वो इतनी अट्रैक्टिव थी दैट द किंग्स वर वेरी मच रेडी टू एक्सेप्ट द पॉलिसी. और फिर बाद में जो 5-6 किंग्स ने उसको एग्री नहीं किया, उसके साथ इन्होंने फाइट करके उनको हरा दिया. तो ऑटोमेटिक वो ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, दे वांटेड ऑल द प्रिंसली स्टेट्स अंडर देयर किंगडम. तो पहले ये शांति से पॉलिसी साइन करवा के जितने मिले वो ले लिए, बाद में क्या क्या वो भी बाद में आएगा. वेट एंड वॉच. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? Okay, so these were the states who readily accepted the policy. I'm turning the page. Actually ये पेज कल ही करेंगे. We don't have time for that. आगे पॉलिसी में क्या होगा that we'll discuss tomorrow. Anything you want to ask? Anybody? Any doubts?